إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا. ہم انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء اور رسول کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی آخری رسول تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. سامعین کرام، ہم اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ امریکہ میں لاس اینجلس جہاں کئی دنوں سے آگ لگی ہے، اور وہ صرف آگ لگی نہیں ہے بلکہ آن کے آن میں یہ آگ گھروں کو جلاتے ہوئے خاکستر کرتے ہوئے دنیا والوں کو یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. لاس اینجلس وہ جگہ ہے جس کو گلوبل کیپٹل آف میوزک کہا جاتا ہے. یعنی اگر ہم ایک معنی میں کہیں دنیا کے اندر جتنی برائیاں آج کل عام کی جا رہی ہیں یا پچھلے 50 سال سے دنیا میں جن بیماریوں کو یعنی جن گناہوں کو عام کیا گیا وہ سینٹر لاس اینجلس ہے. وہاں پہ تمام دنیا میں برائیوں کو عام کیا گیا. بالخصوص فحاشی عریانی ننگا پن کو پوری دنیا میں ہالی ووڈ مووی کے ذریعے سے عام کیا گیا اور اس نسل کو برباد کر کے رکھ دیا. ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں اپنا عذاب بھیجتا ہے. جب اس دنیا میں گناہ بڑھ جاتا ہے اور گناہوں میں بالخصوص یہ زنا، یہ عریانی، یہ ننگا پن بڑھ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کا عذاب اس دھرتی کو پکڑ لیتا ہے اور انسانوں کو ہمیشہ کے لیے لقمہ اجل بنا دیتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو دائی کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں جو آگ لگی ہے یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے. سر فہرست انجینئر مرزا اور جاوید غامدی ان کا کہنا ہے کہ جو آگ لگی ہے یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا عذاب اس وقت آتا ہے جب رسول دنیا میں یہ نبی موجود ہوتے ہیں
तब जो अल्लाह का अजाब आता है उनको अजाब कहते हैं, बाद बाकी अभी जो आया ये अजाब नहीं है। एक तो उनका तबका है, एक अहले इस्लाम है जो कहते हैं कि नहीं ये अजाब है। क्यों? अहले इस्लाम इस हदीस पर ईमान रखते हैं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते कि तेज हवाएं चल रही हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बदल जाता, आपके चेहरे में खौफ के आकार नुमाया हो जाते। अम्मा आयशा पूछती है अल्लाह के रसूल आप घबरा क्यों जाते हैं जब तेज हवाएं चलती हैं? अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं आयशा सुनो, इसी हवा के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम आग को हलाक को बर्बाद कर दिया था और कौम आग को छोड़कर पता नहीं कितनी ही कौमों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हवाओं के जरिए से बर्बाद कर दिया। क्या पता इस हवा में अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब। मालूम ये हुआ कि इंसान को, मुसलमानों को हर एक अल्लाह की निशानी से डरना चाहिए। जब भी कोई आफत आए इंसान को इस्तग़फ़ार करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम गुनाह तो नहीं कर रहे, बजाय उसके कि ये दोनों ये कहते लोगों से कि देखो अल्लाह का अज़ाब है, मुसलमानों इस्तग़फ़ार करो। इन्होंने दुनिया वालों को ये कहा कि नहीं अल्लाह का अज़ाब है। आप इस बात का मतलब समझते? जब कोई अल्लाह का अज़ाब आया कोई कहे कि नहीं अल्लाह का अज़ाब नहीं, इस बात का मतलब ये है कि आपके दिलों में और हमारे दिलों में जो अल्लाह का खौफ है और अल्लाह के अज़ाब का डर है उस डर को निकालना चाहते हैं। और एक तबका है मुल्हिदीन का तबका, जो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि पहले हम मुसलमान थे और हमने इस्लाम को छोड़ दिया। वो मुसलमानों का मजाक उड़ाना, वो कह रहे हैं कि अमेरिका को नहीं पता कि आग कैसे लगी और मुसलमानों को पता लग गया यहाँ बैठे कि आग क्यों लगी और क्यों कर ये आग आई, अल्लाह का अज़ाब है। वो कहते भाई अल्लाह का अज़ाब नहीं है, एक क्लाइमेट चेंज की वजह से है, एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। पहली बात तो ये है क्या क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग अल्लाह का अज़ाब नहीं है? और ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये जो धरती का तापमान बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इंसानों ने इस दुनिया में 200 साल से इतनी फैक्ट्रियां लगा ली और इतने जंगलात को काट दिए कि अपने आप उन्होंने जानबूझकर अपनी नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपनी लालच को पूरा करने के लिए और दौलत बढ़ाने के लिए, दौलत के नशे में इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने धरती से जंगलात को साफ कर दिया और न जाने इतनी माइनिंग की कि फिर जाहिर सी बात ये सारे गुनाह के काम है। यानी इंसान अगर हद से ज्यादा पेड़ काटे, हद से ज्यादा ये जमीन में खुदाई करे तो ये गुनाह का काम है। क्यों? क्योंकि इससे नुकसान होने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को तुम हलाकत में ना डालो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में कई एक मकाम पर फरमाता है वला तुफसिदू फिल अर्दि बअदा इस्लाहिहा, कि इस धरती में फसाद मत मचाओ। मालूम हुआ कि जंगलों को काटना और ऐसे माइनिंग करना जिसकी वजह से दुष्प्रभाव पड़ता है, समंदरों से तेल निकालना जिसकी वजह से न जाने कितनी मछलियां मर जाती हैं और कितनी प्रजातियां विलुप्त हो गई, ये सारे गुनाह के काम है। लेकिन ये मुल्हिदीन ये अल्लाह को मानते नहीं है, ये अल्लाह की मुखालिफत में, अल्लाह की दुश्मनी में ये इस कदर आगे बढ़ गए कि उन्होंने ये समझा कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज अल्लाह का अज़ाब नहीं है। भाई अल्लाह का अज़ाब है और ये इंसानों के करतूतों का नतीजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़वीफा, कि हम दुनिया में वक्तन फवक्तन अपना अज़ाब भेजते रहते हैं लोगों को डराने के लिए। आइए हम देखते हैं आखिर वजह क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, आखिर वजह क्या है कि अमेरिका के ऊपर यह अज़ाब आया है। वैसे अगर हम देखें अमेरिका के जराइम बहुत ज्यादा है, उसके जराइम इतने ज्यादा है कि हम शुमार नहीं कर सकते। लेकिन उन जराइम में आज हम एक जुर्म की बात करेंगे और वो है कुफ़्र यानी बेपर्दगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अन-नूर में फरमाता है इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मुसलमानों के दरमियान अहले ईमान में बेहयाई फैल जाए, नंगापन आ जाए, मुसलमान नंगे हो जाए। ऐसे लोगों के लिए लहुम अज़ाबुन अलीमुन फी दुनिया, दुनिया में दर्दनाक आज़ाब है, वल आखिरह और आखिरत में भी आज़ाब। कौन लोग जो चाहते हैं कि मुसलमानों के दरमियान बेहयाई आम हो जाए, मुसलमान नंगे हो जाए? कौन है?
ये काफिर है, ये मुशरिक है, और मुसलमानों में वो लोग जो खुद नंगे हैं। अगर आपका दोस्त नंगा फिरता है, आपका दोस्त शराब पीता है, वो भी चाहेगा कि मेरा दोस्त शराब पिए। अगर आपका दोस्त नशा करता है, वो भी चाहेगा कि आप भी नशा करें, क्योंकि उसकी फितरत है। जिसकी फितरत में गुनाह आ जाए, फिर वो भी चाहता है कि सामने वाला भी गुनाह करे। अब काफिरों मुशरिकों की फितरत में बेहयाई है और यानी है नंगापन है, तो वो भी चाहते हैं कि मुसलमानों में ये सारा कुछ फैल जाए। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। इस बेहयाई और उरियानी के ऐसे मुज़िल असरात मुरतब होते हैं कि अल्लाह ही जानता है, तुम नहीं जानते। अमेरिका ने क्या किया? बेहयाई को कैसे फैलाया? बेहयाई को तालीम के नाम पर फैलाया। आज हम बहुत सुनते हैं मीडिया के जरिए से कि मुसलमान अपनी बेटियों को तालीम से रोकते हैं। और हमारे इस्लाम ये लड़कियों की तालीम की इजाजत नहीं देते। आप इस बात को समझते हैं? इस्लाम ने कहीं नहीं कहा कि लड़कियों को तालीम से रोको, और नहीं मुसलमान कहते हैं कि अपनी बेटियों को तालीम से रोको, और नहीं कोई आलिम ये कहता है कि किसी लड़की को तालीम नहीं देनी चाहिए। लेकिन आपको बात मालूम होनी चाहिए कि तालीम में और कल्चर में फर्क है। ये कल्चर की बात कर रहे हैं, नाम तो तालीम का ले रहे हैं। तालीम के नाम पर ये हमारे अंदर ये अपना कल्चर को फैलाना चाहते हैं और उसको वो तालीम का नाम देते हैं। और हम मुसलमान ये समझते हैं कि वाकई उलमाए इस्लाम उलमाए किराम लड़कियों की तालीम के खिलाफ है। याद रखें, इस्लाम और नहीं उलमाए इस्लाम लड़कियों की तालीम के खिलाफ है, लेकिन हम उस कल्चर के खिलाफ है जो तालीम के नाम पर हमारे दरमियान फैलाई जाती है। आप ये बताएं, अगर एक लड़की वो तालीम हासिल करे तो इससे क्या वो तालीम हासिल करे तो क्या अगर वो छोटे तो कपड़े पहनेंगी तो ज्यादा इल्म हासिल हो जाएगा? क्या उसका ध्यान ज्यादा चलेगा? क्या उसका दिमाग ज्यादा काम करेगा? ये फालतू बात है, बकवास बात है। तो मालूम ये हुआ कि तालीम अलग चीज है और कल्चर अलग चीज है। लेकिन इन्होंने क्या किया? तालीम के नाम पर स्कूलों और कॉलेजों के जरिए वहां अपने कल्चर को डाल दिया। और कल्चर में क्या? डांस, गाना, मौसीकी को, और इसको नाम दिया फन का। ये फन है, ये कला है, यानी ये गाना, ये नाचना, ये फन है, ये कला है, ये रोजगार का जरिया है। इससे बढ़कर बेहयाई की क्या बात होगी? इस तरीके से इन्होंने दुनिया के अंदर बेहयाई को आम किया। उसके बाद जिस चीज के जरिए से सबसे ज्यादा इन्होंने बेहयाई को आम किया वो है हॉलीवुड मूवी के जरिए। ऐसी ऐसी चीजें प्रमोट की गई, लोगों के जहनों में डाली गई, और ऐसे ऐसे ख्यालात डाले गए कि हम बयान नहीं कर सकते। पूरी दुनिया को बर्बाद करके रख दिया। आज नतीजा यह है कि हमारी नस्ल को नहीं पता कि हया क्या चीज होती है और जिना क्या होता है। जिना इतना आम हो गया कि लोग अगर किसी लड़की से ताल्लुक हो तो उसको अपने लिए शर्मिंदगी की बात महसूस नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि मैं जिना में मुलव्विस हो। अगर एक लड़के के मोबाइल में 4 लड़कियों का नंबर हो, उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि मैं जिना में मुब्तला हूं। अगर एक लड़का गलत चीजें देख रहा है, उसको एहसास नहीं होता कि वो गुनाह कर रहा है। इस एहसास को किसने खत्म किया? इस एहसास को फिल्मों ने खत्म किया। इस एहसास को उन लोगों ने खत्म किया जो लोग मुसलमानों के दरमियान बेहयाई को आम करना चाहते हैं, चाहे तालीम के नाम पर वो अपना कल्चर प्रमोट करना चाहे। उन लोगों ने हमारे दिलों से इस एहसास को खत्म कर दिया और हमने जिना को मोहब्बत का नाम दे दिया। इससे बढ़कर और क्या अफसोस की बात हो सकती है कि कोई इंसान उठे और कहे कि जमजम का पानी ये शराब जैसा है, या जमजम का पानी शराब है। नाउज़ बिल्लाह, जमजम के पानी की तौहीन है। उसी तरीके से जिना को मोहब्बत कहना, प्यार कहना, ये तौहीन है, ये बहुत बड़ी तौहीन है। इस तरीके से आज हमारे दरमियान जिना आम हो चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वमिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीस लियुضل अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिदहा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुन मुहीन। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों को अल्लाह के रास्ते से हटाने के लिए वो गाने बजाते हैं। इस आयत की शान नुज़ूल में मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि मक्का के कुछ काफिर, बिलखुसूस नज़र बिन हारिस, उसने कुछ लौंडियां खरीद कर लाई और इराक गया। इराक जाने के बाद वहां
जो बादशाहों की कहानियां थी वो कहानियां सुन कर आया और साथ में लौंडियां लेकर आया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को दावत देते और वहां से जाते, फौरन अपनी लौंडियों को, उन जानियों को भेज देता था कि जाओ इसके सामने जाके नाचो, इसके सामने जाके अपना जिस्म दिखाओ और इसका दिल बहलाओ। जब उसका दिल बहल जाता फिर नजर बिन हारिस पीछे से आता और कहता कि बताओ मोहम्मद जो नमाज की बात करता है, रोजे की बात करता है, जिस दीन की तरफ बुलाता है, उसमें ज्यादा लज्जत है, उसमें ज्यादा सुकून है, या मैं तुम्हें जिस चीज की तरफ बुलाता हूं उसमें ज्यादा सुकून है। अब बताइए कि उसमें और आज जिस तरीके से हमारे दरमियान यानी वो काफिर और मुशरिक जानबूझकर मुसलमानों के दरमियान बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं ताकि ये लोग अल्लाह को भूल जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को छोड़ दें, ये भूल जाए कि हया नाम की क्या चीज होती है, ये भूल जाए कि निकाह एक मुबारक काम है, ये भूल जाए कि निकाह एक मुबारक काम है और एक अजीम इबादत है। इस तरीके से नजर बिन हारिस की तरह इन्होंने आज हमारे दरमियान ज़िना को आम कर दिया। अल्लाह फरमाता है उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, ऐसे लोगों के लिए रुस्वा कुन अज़ाब है, यानी ऐसा अज़ाब क़यामत के दिन इनको अज़ाब दिया जाएगा, तमाम लोगों के सामने रुस्वा करके अज़ाब दिया जाएगा, इनको ज़लील किया जाएगा। उसके बाद दुनिया के अंदर सबसे बड़ी इंडस्ट्री पोर्न इंडस्ट्री जो अमेरिका में एक ऐसी खतरनाक इंडस्ट्री है, पोर्नोग्राफी ऐसी खतरनाक चीज है कि जिसने इंसानों को जानवर बना दिया, इंसानों को जानवर बना दिया। आज मियां बीवी में मोहब्बत नहीं है, उनके दरमियान मोहब्बत कायम नहीं। क्यों? क्योंकि पोर्न देखने वाला लड़का जब वो शादी करता है उसके दिमाग में पोर्न बैठा हुआ है, वो समझता है कि मेरी बीवी भी ऐसी होनी चाहिए, ऐसा हो वैसा हो, लेकिन जब ये सारी चीजें नहीं होती है तो फिर दोनों के दरमियान दरारें आ जाती है और दोनों के दरमियान लड़ाइयां होती है। ये पोर्नोग्राफी ऐसी खतरनाक चीज है कि आज इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह ने जिसको चाहा बचा लिया और जिसने बचने की कोशिश की वो बच गया, नहीं तो आज कोई बचा हुआ नहीं है। एक तरफ बाप पोर्न देखता है तो दूसरी तरफ लेटे हुए बेटा पोर्न देखता है, घर के तमाम लोग पोर्न देखते हैं, हमारे समाज में सारे के सारे लोग पोर्न देखते हैं और दिल से इधर नफरत थी उस नफरत को इस चीज से निकाल दिया। यानी गुनाह के कई जो एक खौफ था मुसलमानों के दिलों में, उस खौफ को पोर्नोग्राफी ने निकाल दिया और हमेशा दिमाग में पोर्न सवार हो गया। नतीजा ये निकला कि रेप के केसेस बढ़ गए। कोलकाता में जो लेडी डॉक्टर के साथ रेप हुआ, किसी ने आपको बताया कि जो रेप करने वाला था और रेप करने के बाद उसका मर्डर करने वाला था वो पोर्नोग्राफी देखता था, वो पोर्न में लिप्त था, वो मुलविस था। जितने भी रेप के केसेस होते हैं आपको कोई नहीं बताएगा कि जो रेपिस्ट है वो पोर्न देखता है और पोर्न देखने के बाद उसने उस काम को अंजाम दिया। कितनी भयानक चीज है और कितना इसका भयानक हमारे समाज में असर हो रहा है, लेकिन ये बताने वाले नहीं क्योंकि पैसा, इसके जरिए से पैसा कमाना है, पैसा आ रहा है। अब किसी का घर जले, किसी की दुनिया उजड़ जाए, कोई बर्बाद हो जाए, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। ये अमेरिका जिसमें सबसे ज्यादा पेश है इस चीज को प्रमोट करने में, इस गंद को फैलाने में, इस बेहयाई और उन्यारी को आम करने में लोग यहाँ तक आगे बढ़ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो सड़कों पर ज़िना करेंगे, गधों की तरह ज़िना करेंगे और जानवरों की तरह ज़िना करेंगे। और पोर्नोग्राफी देखने के बाद नौजवान ये भी चाहते हैं कि अपनी बीवी के साथ जानवरों की तरह जिमा करें, जानवरों की तरह हम गुफ्तगू करें, ये इंसान की तरह हम गुफ्तगू करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में उन लोगों ने, उन पैसे वालों ने इनके दिमाग में दिखा दिया पोर्न दिखा के कि जाओ तुम भी कुत्तों की तरह हम गुफ्तगू करो, जाओ तुम भी जानवरों की तरह हम गुफ्तगू करो, और नतीजा हम सबके सामने है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तबाही से, इस गुनाह से हम तमाम मुसलमानों को बचाए, आमीन। उसके बाद तीसरी चीज लिवातत को फरोग देना। अमेरिका बिलखुसूस उसने लिवातत किसे कहते हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं, LGBTQ, यानी जो काम एक मर्द अपनी बीवी के साथ करता है वो काम अगर दो मर्द आपस में मिलकर करें इसमें गुनाह की कोई बात नहीं। वो काम
अगर दो लड़की आपस में मिलते करे इसमें कोई गुनाह की बात नहीं, इसको ऐसा प्रमोट किया गया और इन लोगों को मजलूम बना के पेश किया गया। देखो ट्रांसजेंडर ये मजलूम लोग हैं, इनको दुनिया में अधिकार नहीं मिलता, समाज में अधिकार नहीं मिलता, इसमें क्या होना चाहिए, इनका अधिकार होना चाहिए। क्या अधिकार होना चाहिए भाई, यानी अगर दो लड़के आपस में मिलकर अपनी दिल से ख्वाहिश को पूरी करे, अपनी दिल से ख्वाहिश पूरा करे, तो हमें अधिकार नहीं होता कि हम उसको टोके, बल्कि पूरी दुनिया आए जिस तरीके से वो नंगे हैं हम भी नंगे हो जाए। आपको मालूम होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि ये बीमारी इस कदर आम हो चुकी है, इस कदर आम हो चुकी है, हमारे यहाँ तो नहीं हुई लेकिन वहां इस कदर आम हो चुकी है कि बड़े बड़े लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि मैं गे हूँ, हम गे हैं। उनको शर्म नहीं आती कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लूत अलैहिस्सलाम की कौम को कैसे तबाह बर्बाद कर दिया। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम के लोगों, इन्नकुम लतअतून रिजाला शहवतन मिन दुनिन निसा, ये मेरी कौम के लोगों तुम मर्द हो, ये तुम्हारी औरतें हैं, तुम्हारी बीवियां हैं, जाओ उनसे हम बिस्तरी करो, उनसे अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करो। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ये क्या करते थे, ये वो तो वही लोग हैं, ये तो आज जो LGBTQ की बात कर रहे हैं और पूरी दुनिया में हर जगह में जहां भी कोई बड़ा फंक्शन हो ये सारे के सारे पहुंच जाते हैं, झंडा उठा करने के चले जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि वो हमारे दरमियान विवाह तक पे पहुंच देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह हिजड़े बन जाए, उनकी तरह नामर्द हो जाए और उनकी तरह हम भी हरकतें करें, जोर बन जाए। इन चीजों को हमारे दरमियान फ्लोर देने के लिए वो मुसलमान ममालिक को वो प्रेशराइज करते हैं तो ऐसे कानून पास करें कि उनके यहाँ इसको जिना ना समझा जाए, उनके यहाँ इस काम को बुरा ना समझा जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फलम्मा जाअ अमरुना जअलना आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहा हिजारतन मिन सिज्जील, कि जब लूत अलैहिस्सलाम ने खूब समझाया अपनी कौम को कि इस काम से बाहर आ जाओ, जब ये बात नहीं आए अल्लाह ने उनकी बस्ती को उलट कर रख दिया। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ में आए, उन्होंने अपने पर से पूरी बस्ती को उठाया, आसमान तक ले गए और वहां से उस बस्ती को पलट कर रख दिया और हमेशा के लिए बस्ती जमीन के नीचे दब कर रह गई। न जाने उस बस्ती की जैसी कितनी बस्तियां, हजारों बस्तियां इस दुनिया में हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमेशा के लिए जमीन के नीचे दबा कर रख दिया उनके गुनाहों की वजह से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वमा ज़हरत फाहिशतुन फी कौमिन क़त्तु इल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिम मौत, कि जिस कौम में गुनाह आम हो जाए उस कौम में अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत का अज़ाब बनाकर भेजता है। यानी अगर किसी कौम में गुनाह आम हो जाए, गुनाह को बुरा ना समझा जाए, लोग गुनाह में लिप्त हो, तो ऐसी कौम में अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत को भेजता है। वो ऐसे मर जाएंगे तो उनको खबर नहीं पड़ेगी कि भाई ये मर क्यों रहे हैं, लोग मर रहे होंगे, आज फला मर रहा होगा, कल फला मर रहा होगा, इस तरीके से कौम में तबाही आएगी। एक और रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लम तज़हर फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु हत्ता यु'लिनु बिहा इल्ला फशा फीहिम अत-ताऊन वल औजा अल्लती लम तकुन मदत फी अस्लाफिहिम अलज़ीना मगौ। फरमाया कि जिस कौम में गुनाह आम हो जाता है, बेहयाई फैल जाती है, नंगापन आम हो जाता है, पूरे कौम खुले आम इस बेहयाई के काम को करती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बतौर अज़ाब ताऊन बीमारी को भेजता है, वल औजा, और ऐसी बीमारियों को भेजता है जो बीमारियां पहले कभी नहीं हुई, वो बीमारियां इन लोगों को लग जाती है। क्यों? ज़िना की वजह से। ये ज़िना बहुत खतरनाक बीमारी है, ये ज़िना बहुत खतरनाक गुनाह भी है और इसके नताइज बड़े खतरनाक बरामद होते हैं, बड़े खतरनाक मुरतब होते हैं। इंसान ज़हनी तौर पर बर्बाद हो जाता है, जिस्मानी तौर पर बर्बाद हो जाता है और हर एतबार से बर्बाद हो जाता है। जिसके साथ वो गुनाह करता है वो भी बर्बाद हो जाता है और जिस तक की बीमारी फैलती है और तमाम के तमाम लोग बर्बाद हो जाते हैं। ज़िना ऐसी बीमारी है, उसको करने के बाद इंसान के माल में बरकत नहीं होती, उसके जिस्म में बरकत नहीं होती, उसके दिमाग में बरकत नहीं होती, अल्लाह उस इंसान को बर्बाद करके रख देता है। और इस बात को याद रखिए, इस ज़िना की वजह से आज नामर्दानगी कितनी ज्यादा आम हो गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया था, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, कि जब तुम ज़िना के रास्ते में जाओगे तो फिर अल्लाह जानता है कि इसके कितने भयानक नताइज तुम्हारे सामने आएंगे।
तुम नहीं जानते इंसान जब जिना के रास्ते पे चलता है तो वो एक रास्ते पे नहीं जाता बल्कि वो कई एक रास्ते पे जाता है, वो नए नए तरीके अपनाता है जिना के। और आजकल बहुत सारे नए तरीके आ गए तो लोग जिससे जिना करते हैं उनमें से एक तरीका है कि लोग अपने हाथों से अपनी मनी को निकालते हैं, अपने पानी को खारिज करते हैं। आज से बहुत पहले की बात है, जब ये बीमारी आम नहीं होती, लोगों को बुरा महसूस हो रहा था, अंदर से महसूस हो रहा था कि मैं बहुत बुरा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा गुनाह का काम कर रहा हूँ। ऐसी सूरत में बड़े बड़े डॉक्टरों को पैसे दिए गए और उनको बताया गया कि जाओ तुम जाके बोलो कि हस्तनेत्रों करने से कोई बीमारी नहीं होती, कोई असर नहीं होता, कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं होता। फिर नतीजा क्या हुआ, नौजवानों को ये बात मिल गई, ये सर्टिफिकेट मिल गया कि भाई इससे कोई बीमारी नहीं होती और इससे कोई कमजोरी नहीं होती। यहाँ तक तो उन्होंने बताया कि महीने में तो एक बार करना जरूरी है। इस तरीके से इस बीमारी को आम किया, इस बीमारी को आम किया और बीमारी इस कदर आम हो गई कि आजकल अक्सर नौजवान नामर्द बन गए। या तो 40 साल की उम्र में कोई नामर्द बन रहा है, या तो कोई 50 साल की उम्र, मात्र 50 साल की उम्र में वो काबिल नहीं कि बीवी के पास जाए। बहुत सारे तो ऐसे हैं कि 30 साल के होते होते ही वो आधा नामर्द हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था कि गुनाह के रास्ते पर चलोगे तो बहुत सारी बीमारियां तुम्हें आएंगी। उनमें से एक बीमारी ये नामर्दानगी की बीमारी है जो आजकल बहुत ज्यादा आम हो गई है। इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िना की वजह से लोगों पर मुसल्लत करता है। याद रखिए ये ज़िना की सजा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में भेजता है। इस गुनाह की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया। इस बात को अच्छी तरह से हमें याद होनी चाहिए। और कई अहादीस है जो गुनाह के ताल्लुक से हमें बताती है कि इंसान जब गुनाह करता है तो वो खुद अपने लिए अपने ऊपर अल्लाह के आज़ाब को हलाल कर लेता है। फक़त अहल्लू बिअनफुसिहिम आज़ाब अल्लाह, वो अपने ऊपर अल्लाह के आज़ाब को हलाल कर लेता है। अब इससे अंदाजा लगाएं कि जो लोग गुनाह को प्रमोट करने वाले हैं, जिनकी वजह से लोग नौजवान ज़िना में पड़ रहे हैं, जिन फिल्मों की वजह से, जिन ड्रामों की वजह से, जिन वीडियोज की वजह से लोग ज़िना की तरफ माइल होते हैं, ज़िना की तरफ राग़िब होते हैं, अगर करने वालों के लिए इतनी बड़ी सजा है तो जो लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बारे क्या फरमाया, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया, ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी आज़ाब है और आखिरत में भी आज़ाब है। इसलिए हम कहते हैं कि लॉस एंजलिस में जो आग लगी है ये अल्लाह का अज़ाब है, ये दुनिया का अज़ाब है। अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया का अज़ाब ये बहुत छोटा अज़ाब है, बहुत हल्का अज़ाब है। इंसानों को चाहिए कि रुजू करें और तौबा करें, अपने गुनाहों से ताइब हो, अल्लाह के सामने तौबा करें कि अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ फरमा। अगर इंसान अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ फरमा देता है। तो हमें यहाँ क्या करना चाहिए, हमें इस अज़ाब से खुश नहीं होना चाहिए बल्कि हमें भी सबक लेना चाहिए कि जिस तरीके से उनके ऊपर अज़ाब आया है उसी तरीके से हमारे गुनाहों की वजह से हमारे ऊपर भी अज़ाब आ सकता है। हमने भी अपने ऊपर गुनाह करते करते अल्लाह के अज़ाब को हलाल कर लिया है। अगर इस अज़ाब से हम बचना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करें। आखिर में रब्बुल आलमीन से दुआ गो हो कि मारे इलाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए मारे इलाह हमें ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए मारे इलाह हमें ज्यादा से ज्यादा तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल करीम मलिकुल बर्र रऊफ़ुर रहीम।